Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Yes, in the last session we have discussed about the summary of the photosynthesis and then we have discussed about the steps of the light reaction. And now we will continue the lesson because you know that photosynthesis consists of two steps, two major phases. Number one is light reactions and second is dark reaction. And in the previous lesson, I have differentiated between the light reaction and dark reaction, and then in the next video I've explained about the steps of the light reaction, how there will be the formation of the major molecules, energy molecules like ATP and NADPH. Now we have to continue this topic because the second part and second phase, which is known as dark reaction, and Melvin Kelvin have discovered this reaction, so that's why the name is Kelvin cycle. And I already told you that why this reaction is known as dark reaction. Okay, it doesn't mean that it only occurs at the night time. ये डे टाइम में भी हो सकता है, because this reaction is light independent, means there is no need of light reaction for this process, right? Okay, and in this summary I've explained that there is utilization of carbon dioxide gas in the dark reaction, right? और ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में होता है, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है, वेयर देर इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होएगा ना, दिस हाइड्रोजन विल बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Now we will see that how this carbon dioxide gas will be used for the formation of glucose, because it consists of a cyclic pathway. And now I'm going to describe about the steps. There are three major points of the dark reaction, right? We are going to discuss that there is a use of 3 molecules of carbon dioxide gas. How many molecules of carbon dioxide gas? 3 molecules. इसमें कितने molecules use होंगे? Only and only 3 molecules of carbon dioxide gas will be used. These 3 molecules of carbon dioxide gas will make a bond with 3 molecules of 5 carbon compound. ठीक है, यानी 3 molecules of carbon dioxide gas रिएक्ट करेंगे किसके साथ? 3 molecules of 5 carbon compound. क्योंकि इस लेवल पे इस टाइम मैं 9th ग्रेड के लेवल की डिस्कशन कर रही हूँ, अदरवाइज देर आर नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, लेकिन इस टाइम पे आपका जस्ट बेसिक नॉलेज हमने आपको देना है कि लाइक हाउ देर विल बी द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि 9th ग्रेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कशन करनी है कि इसमें किस तरीके से जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज की फॉर्म में रिड्यूस होएगा. आप यहाँ पे देख लें, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड? देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, राइट. इसके लिए मैं अक्सर कहती होती हूँ कि ये वाले जो आप लोग 3 बीड्स बना लें, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, राइट. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यानी कि लाइक दिस वन इज 1 मॉलिक्यूल, second molecules of 5 carbon compound, and then that one is a third molecule of 5 carbon compound. 1 2 3, these are the 3 molecules of 5 carbon compound. अच्छा, ये तीनों लाइक जिस तरह होता है ना 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के लाइक 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5, कि हर ग्रुप में 5 कार्बन है. और यहाँ पे जो आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ये आप ये ले लें कि लाइक दिस वन देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब डेफिनेटली कैसे आप इक्वली इसकी लाइक इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे? ईच मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल मेक अ बॉन्डिंग विद 1 ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, ये किस तरीके से इस पर रिएक्शन होएगा? व्हेन दीज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड will combine with 3 molecules of carbon dioxide gas, then there will be formation of 3 molecules of 6 carbon compound.
ये बहुत इजी, इसको जस्ट गेम की तरह आप लोग ले लें। ये तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 के आपने इसको इधर किया, कितने हो गए। आप यहाँ पे देखिए ये 5 कार्बन है, तो जब आप हर कार्बन को इस हर ग्रुप में आगे उसकी बॉन्डिंग करेंगे, जैसे जैसे न्यू एडमिशन हुआ है और आप चाह रहे हैं कि आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री का ग्रुप है, तो हर ग्रुप में एक एक पार्टिसिपेंट को जो है ना वो फर्दर आप ऐड करेंगे ताकि इक्वल उस पर डिवीजन रहे। तो हर जब ये कार्बन जो हर मॉलिक्यूल जब कार्बन का हर ग्रुप के साथ ज्वाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 कार्बन की बजाय ये 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस 5 कार्बन कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन compound, but there will be how many molecules? 3 molecules which temporarily split into 2 3 carbon compound. Still these are known as 2 3 carbon compounds. Done? Okay, now what will happen? These 3 molecules of 6 carbon compound will be converted into 3 molecules of 6 molecules of 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रही हूँ कार्बन कंपाउंड की। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड जो कि कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। उसके बाद क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन। ये कोई इतना मुश्किल गेम नहीं है। जब आपका यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, नेक्स्ट भी 3 मॉलिक्यूल्स होंगे जब ये कंबाइन करेंगे। लेकिन अब क्या होएगा इन द नेक्स्ट स्टेप? these 3 molecules of 6 कार्बन कंपाउंड, लाइक ये जो कार्बन कंपाउंड है ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होएगा। these will be converted into 6 molecules of 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये आपका जो 6 कार्बन कंपाउंड है that will be converted into 6 molecules of 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होएगा, बट दिस स्टेप यूटिलाइज द एनर्जी। और ये किस फॉर्म में एनर्जी यूज़ करेगा? एटीपी की फॉर्म में। एंड ऑल्सो इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम NADPH। यानी कि ये जो प्रोसेस है जो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होएगा, इसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी ATP से और NADPH से। ATP and NADPH already we have discussed, these energy molecules are formed in light reaction. Dear, ये light reaction में ये दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। अब ये दोनों आगे एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे। इसमें से एनर्जी भी और हाइड्रोजन आगे फर्दर यूज़ होएगा। अब ये आगे फर्दर यूज़ होगा तो इससे क्या बनेगा? लाइक दीज 6 molecules of 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, लाइक दीज विल बी कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके 6 मॉलिक्यूल्स आपने 1 2 3 4 5 and 6 molecules of 3 carbon compound, 1 2 3 4 5 6, right? Now what will happen, that the one molecule from these 6 carbon carbohydrates, one molecule will be used for what? For the formation of glucose। ठीक है, that 3 carbon will be used for what? For the formation of glucose। ये आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए यूज होगा। हाउ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? You can see over here. Now 1 will be used, and how many carbon carbohydrates will be left over? 5, because 1 is used for the formation of glucose. Rest of the 5 molecules of 3 carbon carbohydrates, okay, 5, because the 1 will be used. There are 6 molecules, like just like 6 groups, यानी कि 6 ग्रुप्स हैं, उसमें से एक ग्रुप जो है वो ग्लूकोज के लिए यूज़ हो गया। बाकी हमारे पास कितने रह गए? 1 2 3 4 5 ओनली 5 आर लेफ्ट ओवर। ये हम लेफ्ट ओवर को यहाँ पे लिख देंगे कि 5 molecules of 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर लेफ्ट ओवर। 1 2 3 4
5. Okay, now what will happen? These 5 molecules of 3 carbon carbohydrates will be converted back into original compound, into 3 molecules of 5 carbon compound. This one is an original compound, and this step also utilizes the energy in which form? In the form of ATP. आपने ये देखा है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा आइडिया किया होगा कि यहाँ पे जब कार्बन कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो रहे हैं तब भी एनर्जी यूज़ हो रही है, जब कार्बोहाइड्रेट से दोबारा कार्बन कंपाउंड में, ओरिजिनल कंपाउंड में चेंज हो रहे हैं तो उसमें भी अगेन एनर्जी यूज़ हो रही है. ठीक है. सो अगेन दिस स्टेप विल बी यूटिलाइजेज द एनर्जी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ATP. यानी ATP में ही ब्रेक डाउन होएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, एनर्जी रिलीज होगी. मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ. इट्स वेरी वेरी इजी. यू कैन ईजिली राइट अबाउट द स्टेप्स ऑफ द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स लाइट इंडिपेंडेंट. ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता. दिस स्टेप ओनली यूटिलाइजेज द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH. सिंपल सी बात है. ये आप इसी को डायग्राम को सामने रखते हो, आप इजीली इसकी लर्निंग कर सकते हैं. यहाँ से अगर आपको टिप भी मैं बता देती हूँ कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस साइकिल में यूज़ होगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर यूज़ हो रही है तो वो किसके साथ कंबाइन कर रही है? 3 मॉलिक्यूल्स. यानी ये भी 3 है और ये भी 3 मॉलिक्यूल्स है, आगे भी 3 मॉलिक्यूल्स. और ये आप खुद बता सकते हैं कि इसमें 5 कार्बन है, हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन. राइट. उसके बाद इसका डायरेक्ट आपने आगे उसके कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करना है. कार्बोहाइड्रेट्स में से एक यूज़ हो गया, बाकी कितने रह गए? बाकी 5 रह गए. और वो दोबारा से आपके रीजनरेट कर देगा ओरिजिनल कंपाउंड को. तो ये इतना मुश्किल नहीं है. टिप भी यहाँ पे ये देख लें अगर आप इसको. लेकिन मेरा यही सजेशन है, एडवाइस आपके लिए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करें. टिप यही है कि अगर आपको थोड़ा सा हो जाए तो आप यहाँ पे ये देख लें कि ये तो 3 ही है. 3 × 5, 3 × 6. ठीक है. अगर आप राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 3 × 6, 6 × 3. यहाँ 3 × 5, 5 × 3. तो ये आप इजीली, आपको ये नहीं भूलेगा. आप आराम से, कि इसके ऑपोजिट है. अगर आप राइट साइड पे देखें और लेफ्ट साइड पे भी देखें इसके अकॉर्डिंग, इस पेज के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ देखें 3 × 6 है तो यहाँ 6 × 3 हो जाएगा. यहाँ 3 × 5 है, यहाँ 5 × 3 होगा. लेकिन ये नीचे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऊपर वाले कार्बन कंपाउंड्स हैं. इस तरीके से ये आप लर्निंग कर सकते हैं. ये बहुत बेसिक है. इसमें आप लोगों को कोई भी ये स्टेप्स नहीं बताए गए. अदरवाइज देयर आर 3 स्टेप्स इन द कैल्विन साइकिल. दिस reaction is also known as Calvin cycle. There are 2 names, dark reaction as well as Calvin cycle. And this question is important for the short question as well as for the long question. Long में तो आपको पूरी समरी भी आ सकती है, पूरी इसकी आउटलाइन, लाइट और डार्क रिएक्शन के स्टेप्स आ सकते हैं. आई एम श्योर कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. बहुत इजी टॉपिक. आप इसी तरीके से ये वाले आप लोग सर्कल्स बना के काउंट करके आप इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बार बार आपको याद करने की नीड नहीं होगी. और सेकेंडली, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा. अगर आप नए आने वाले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फर्दर फेलोज़, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स, अपनी आगे फर्दर अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. ओके.